Hello students. So today we are going to start the next chapter. The name of the chapter is Elasticity of Demand. This chapter is totally based on the numerical part and it is related with the theory of demand, that is from the last chapter. So before going through the chapter, I just want to give you the rewind that what is the shape of the demand curve. As we all know, the shape of the demand curve is like this. These are the two axes. On the x-axis we used to take quantity demanded, and on the y-axis we used to take price. Suppose quantity we have taken 50 and 100 and price is rupees 5 and rupees 10. Now just think, if the price is rupees 5, at that time quantity demanded is 100, then this will is the locus. Locus means where 2 point meet. And now suppose the price has rise from 5 to rupees 10, then quantity demanded will be fall. Quantity demanded will fall. If you say sir ऐसा क्यों होता है, क्यों कीमत बढ़ने से प्राइस फॉल करता है, I will simply answer you in one sentence, that is due to law of demand. So we get the two locus point. If we join the locus point, we will get a demand curve. This is the demand curve. Clear? So we all know there is inverse relationship between price and quantity demanded. Price and quantity demanded means when price rises, demand will fall, and when price fall, demand will rises. So there is inverse relationship. That's why the shape of the demand curve is downward sloping. Clear? Now the next question is, this is law of demand. We all know the shape of the demand curve. Right now we have understood. But my question is, see, just see the graph. This is one demand curve. This is another demand curve. And this one is another demand curve. Here what I am seeing, with what we are seeing, that if the price is fall, demand is rises. If the price is fall, demand is rising. If the price is fall, demand is rising. Means जब पहला, see the first diagram, see this one, when the price is falling, demand is rising, yes or no? But kitna, we don't know. How much, we don't know. See, over here also price is falling and demand is rising, but how much, we don't know. Over here also price is falling, demand is rising, but how much, we don't know. लेकिन हर बार आप देखेंगे इसमें, देखिए डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. क्वांटिटी डिमांडेड, ओवर ईयर क्वांटिटी डिमांडेड इज मच स्मॉल, एंड ओवर ईयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल इन प्राइस. मतलब प्राइस में जितना फॉल है, डिमांड में उतना ही इंक्रीज हुआ है. यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस में थोड़ा सा फॉल हुआ है, लेकिन डिमांड में इंक्रीज क्या हुआ है, ज़्यादा. आप ये देख सकते हैं, ये गैप क्या है, ज़्यादा है, ये गैप कम है. यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्राइस में ज़्यादा फॉल हुआ है. सी, प्राइस में ज़्यादा फॉल, बस क्वांटिटी कितना बढ़ा है, थोड़ा सा. तो इससे क्या पता चला कि क्वांटिटी डिमांड इक्वली इफेक्ट नहीं करता है. कभी ये ज़्यादा बढ़ता है, कभी ये कम बढ़ता है, कभी प्राइस के इक्वल में बढ़ता है. तो हमें ये चीज़ पता लगाना है कि कितना बढ़ता है या कितना घटता है, और ये चीज़ हम आसानी से पता लगा सकते हैं किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि कितना बढ़ा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं. कितना इंक्रीज हुआ है, ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डू टुडे. अंडरस्टूड? So this is known as, and the way we are going to solve this numerical is known as elasticity of demand. Clear? Now let's start. So from the first definition we will start and see the definition of the chapter elasticity of demand. What is elasticity of demand? What are the different types of elasticity of demand? So the answer is, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in a determinants.
फिर से बता रहा हूँ, पर आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोटेड बाय ईडी, रिमेंबर elasticity denoted by ed is the percentage change in quantity. You have to remember this line only, percentage change in quantity demanded due to percentage change in its determinant. means अब डिटर्मिनेंट से पहले समझना पड़ेगा. अगर आप लोगों, अगर यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? रिमेंबर, फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ own commodity, yes or no? Second is income of the consumer, इस तरह से थर्ड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन साइज ऑफ द पॉपुलेशन. दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वी हैव स्टडीड. सो अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज आता है, मीन्स अगर प्राइस में चेंज आता है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस, तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इनकम में चेंज आता है, अगर मान लो 1% इनकम में चेंज आता है, तो डिमांड में कितना, अगर आपका 1% इनकम बढ़ जाता है, यानी मान लो आपके 1000 रुपये है और अगर आपका 1% इनकम बढ़ गया, तो फिर आपका डिमांड में कितना चेंज आएगा. फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसी तरह से हर डिटर्मिनेंट के परसेंटेज चेंज में कितना डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और अच्छे से हम लोग समझते हैं. अब हम डेफिनेशन को देखेंगे तब हमें और भी आसानी से समझ में आएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब डिमांड में कितना चेंज होगा जब परसेंटेज चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट, जब उसके डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट्स क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट्स मैंने क्या बताया था, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रेड गुड, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. तो उनमें अगर परसेंटेज चेंज होता है उन सब डिटर्मिनेंट्स में, तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, और उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी, income elasticity, and last is cross elasticity. Price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. Understood? Now in your syllabus you have to only study price elasticity. Actually we are not going to study elasticity of demand, we are going to study price elasticity of demand. We are going to study price elasticity of demand only, because in your syllabus you are having only price elasticity of demand. अब बोलोगे सर ये प्राइस इलास्टिसिटी तो समझ में, इलास्टिसिटी का मतलब क्या था, अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज होता है, डिटर्मिनेंट्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड, उनमें चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा. अगर उसमें कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा. लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी. तो हम लोग सिर्फ किसको पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्राइस को. अगर प्राइस में चेंज आता है, सी अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में, यू कैन सी ओवर हियर, अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में मान लो 1% कीमत बढ़ जाता है, तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और हम लोग को सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, यही डेफिनेशन होगा. देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज, वही डेफिनेशन यहां पर भी है. देखो प्राइस इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ईडी, elasticity of demand is also denoted by ED, but we are having only price elasticity in the syllabus, that's where we are taking price elasticity as ED. अगर इलास्टिसिटी होता तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर एब्रीविएशन लेते, बट प्राइस इलास्टिसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं ED से, बिकॉज हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है. तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ED से. अब देखिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन है वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, लेकिन क्या चेंज है मैं बता दूं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. देखिए इसमें भी था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, सिर्फ प्राइस. और यहाँ पर क्या था, ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स था. तो सारे डिटर्मिनेंट्स हमें नहीं लेना है, सारे डिटर्मिनेंट्स हमें प्राइस, इनकम, सारे डिटर्मिनेंट्स को नहीं लेना है. इन सारे डिटर्मिनेंट्स को नहीं लेना, हमें सिर्फ किससे देखना है, हमें सिर्फ प्राइस को देखना है. क्लियर, हमें सिर्फ प्राइस को देखना है. अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ अब प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्राइस इलास्टिसिटी, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये टोटली क्वांटिटेटिव है, मतलब इसमें हम डिमांड में कितना चेंज होता है उसको मेजर करते हैं.
और लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड था क्वालिटेटिव, याद रखना, वो सिर्फ रिलेशन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड ओनली shows रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज लॉ डिमांड सेज दैट इफ प्राइस विल राइज देन डिमांड विल फॉल। यही तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड, किसी चीज का कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन कितना ये नहीं बताता। ऑफ व्हाट क्वांटिटी इट डज नॉट सेज, इसीलिए उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव, यानी ये सिर्फ रिलेशन बताता है, क्वालिटी बताता है, बट क्वांटिटी नहीं बताता है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, दिस इज क्वांटिटी, बिकॉज इट शोज कि कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे मेजर करने, चूंकि ये हम मेजर करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी है। ये क्वांटिटी होने की वजह से इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला इज परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हो देखो, परसेंटेज डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दिस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्लियर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यू कैन सी all of you can see very easily, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ये जो ट्राइंगल साइज ये है, दिस ट्राइंगल shows change, this triangle shows change, this triangle। so what is the formula? Percentage change, again I am saying the formula, see, percentage change in quantity demanded due to percentage change in price। देखिए ये जो फॉर्मूला है यही इसका डेफिनेशन है। पहला ऊपर का फॉर्मूला में देखो, ईडी इज इक्वल टू, ऊपर जो लिखा है यहाँ लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ड्यू टू मतलब डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस को हम नीचे लिए, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। क्लियर? सो फॉर्मूला समझ गया, डेफिनेशन समझ गया, डेफिनेशन पूरी तरह से फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन आई एम सेइंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह के थे? 3 तरह के। कौन कौन से थे? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस, बट यू आर हैविंग ओनली प्राइस इलास्टिसिटी इन योर सिलेबस। अगेन प्राइस इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी आर ऑफ 5 टाइप। ठीक है, क्वेश्चन है इलास्टिसिटी तो लिखना 3 और प्राइस इलास्टिसिटी पूछे तो लिखो क्या? 5। सो प्राइस इलास्टिसिटी आर ऑफ 5 टाइप। कौन कौन से है? अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। वन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। रिमेंबर द नेम, you should remember these names। there are 5 types of price elasticity of demand: perfectly elastic, perfectly inelastic, highly inelastic and unitary elastic। now one by one we will understand all these। let's start from perfectly elastic। perfectly elastic, see, perfectly elastic, perfectly elastic। can you able to see the shape of the demand curve? देखो डिमांड कर्व का शेप कैसा है? इट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीन्स पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का क्या है? पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है डिमांड में चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन डिमांड। सी, डिमांड में चेंज हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस वहीं का वहीं है। मान लो अगर प्राइस 10 था तो पहले हम कितना खरीदते थे? 50। अब प्राइस 10 है, अब हम कितना खरीदने लगे? 100। यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। पहले जितना प्राइस था 10 रुपये पे कितना खरीद रहे थे? मान लेते हैं जब प्राइस था 10 रुपये तो हम खरीद रहे थे 50। अभी प्राइस फिर 10 रुपये ही है, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं? 100। इसका मतलब 2 पॉइंट, अब ये 2 पॉइंट मिला, जब इस 2 पॉइंट को ज्वाइन किए तो डिमांड कर्व कैसा मिला हमें? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? और जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बने या दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? और इट इज डिनोटेड बाय ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक बने तो वहां पर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कब आता है? तो आपको मैं बता दूं, इन्फिनिटी तब आता है जब हम किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी चीज़ों को डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर कोई वैल्यू लेते हैं 10, 10 को जब भी 0 से डिवाइड करें, यानी कोई भी ऊपर में नंबर हो उसको जब भी डिवाइड करते हैं किससे?
जीरो से, रिमेंबर, तो हमेशा आंसर क्या आता है, आंसर विल बी ऑलवेज इन्फिनिटी, यानी इसमें जरूर नीचे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, नाउ कम टू परफेक्टली इन इलास्टिक, सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड विल बी कांस्टेंट, बस प्राइस चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो प्राइस जब इतना था तो डिमांड था इतना, व्हेन प्राइस हैज इंक्रीज टू हियर स्टिल आई एम डिमांडिंग इतना, यानी हम प्राइस 10 रुपये था फिर भी 50 खरीदे थे, प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 20 रुपये, फिर भी हम 50 ही खरीद रहे हैं, यानी आप 2 पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये 2 पॉइंट मिलेगा, और इस 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसा मिला, डिमांड का वर्टिकल मिला, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऐसे में हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। In such case what we will say, the demand curve is perfectly inelastic, inelastic मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, इलास्टिक का मतलब होता है लचक, रबड़ देखें, रबड़ उसी तरह से, जैसे अगर हम एक रबड़ दिखाएं और अगर हम इसको बोले दिस इज इसमें अगर चेंज हो रहा है, सी ये अगर एक रबड़ है, अगर हम बैंड है इसको अगर हम इसमें करते इलास्टिक, और कम हो रहा है तो इन इलास्टिक, अगर ज़्यादा लचक है तो इलास्टिक और कम लचक है तो इन इलास्टिक, ठीक है, यानी जब लचक कम हो तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर देखिए डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक बोलेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली क्यों बोला गया, बिकॉज जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल वहीं का वहीं है, अभी देखेंगे आगे चल के कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। अब कम टू नंबर थर्ड, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक मीन्स व्हेन देयर इज स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज होगा, स्मॉल, बट डिमांड में कितना चेंज होगा, लार्ज परसेंटेज चेंज, मान लो प्राइस 10% गिरा लेकिन डिमांड कितना इंक्रीज हुआ, मोर देन 10%, दैट इज 30% मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे में प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ बट डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ, और जब ये पॉइंट को ज्वाइन करके देखे तो डिमांड कर्व कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन कैसा बना, फ्लैटर, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बना बट कैसे बना, फ्लैटर, क्लियर। ये किस में होता है मैं अभी बताऊंगा, पहले तीनों बता दूं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, क्लियर। नाउ कम टू दिस इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक, नाउ हाईली इन इलास्टिक, now what is highly inelastic, highly inelastic means when there is small percentage change in large percentage change in price, यानी प्राइस में ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड कितना चेंज हुआ, थोड़ा सा, यहाँ देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज था, डिमांड में ज़्यादा, यहाँ क्या बता रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, डिमांड में थोड़ा, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे में बोलते हैं हाईली इनइलास्टिक, यानी डिमांड में लचक कम है, इन इलास्टिक, ऐसे में डिमांड कर्व क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनता है, लेकिन देखो जैसे ये फ्लैटर बना था, ये क्या बनेगा, स्टीपर, क्लियर, ये क्या बनेगा, स्टीपर। नेक्स्ट द लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक, आई टेल यू, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जब प्राइस में और डिमांड में इक्वल परसेंटेज चेंज हो, मतलब मान लो प्राइस 10% फॉल हुआ तो डिमांड भी कितना इंक्रीज हुआ, 10% ही, यानी दोनों में कितना परसेंटेज चेंज है, इक्वल परसेंटेज चेंज है, एट दैट केस व्हाट वी से दैट डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलते हैं ऐसे में, यूनिटरी इलास्टिक, और उस वक्त आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1, याद रखना, इक्वल टू 1, अच्छा, हाईली इलास्टिक जब रहे तो आंसर ईडी इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी आंसर कैसा आएगा, 1.23, 2.54, यानी मोर देन 1 आएगा, और इसमें आंसर लेस देन 1 आएगा, हाईली इलास्टिक में लेस देन 1, जैसे कि 0.28, 0.97, यानी देखो 1 से कम आएगा आंसर किसमें, हाईली इन इलास्टिक में। अब एक एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर तुम्हें जो जानने की ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल see these two means perfectly elastic, sorry, perfectly elastic and perfectly elastic, these two are hypothetical,
हाइपोथेटिकल, दीज टू आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब रियल वर्ल्ड में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो इस तरह का हो, यानी जिसका कीमत में कोई भी चेंज ना हो और फिर भी हम ज्यादा खरीदें। यहां पर सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, मींस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम को कांस्टेंट रखना है, टेस्ट को भी फेवरेबल कांस्टेंट रखना है, प्राइस ऑफ सब्सिडी सब चीज को सेम रखना है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तभी ये चीज काम कर रहा है, समझोगे? ठीक है, यानी यहां पर सिर्फ दो चीजों को देखना है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो कभी भी सिर्फ दो चीज, अगर प्राइस और क्वांटिटी को मेजर करें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस में कोई चेंज ना हो और फिर भी डिमांड लगातार इंक्रीज हो। यानी प्राइस में देखो यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेट, सी देर इज नो चेंज इन प्राइस बट स्टिल वी आर, आवर डिमांड इज इंक्रीजिंग। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये क्या हाइपोथेटिकल है। और देयर इज चेंजेज इन प्राइस, प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं है, दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल। तो ये दोनों हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मीन्स इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड, मतलब इसका कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब असली में वास्तविक रूप में देयर इज नो एनी सच गुड्स जो इस तरह का जिस पे इफेक्ट हो। क्लियर? नाउ अगर आंसर जीरो आए तो क्या होगा? आंसर जीरो आए तो बोलोगे सर वो परफेक्टली इनलास्टिक होगा। अगर आंसर इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी कब आता है? जब कोई चीज़ को हम किससे डिवाइड करते हैं? जीरो से। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आंसर शुड बी इन्फिनिटी, तो वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। तो इस परफेक्टली इलास्टिक, तो ये दो हाइपोथेटिकल है। हमें स्टडी कौन सा करना है? हमें सिर्फ ये तीन को स्टडी करना है। और रियल वर्ल्ड में जितने गुड्स होते हैं सब इसी तीन पर होते हैं। कौन कौन से हैं? हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मीन्स वी आर स्मॉल चेंज इन प्राइस बस लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे में ईडी क्या आएगा, यानी पैरासिटी का आंसर क्या आएगा? मोर देन वन। मोर देन वन मतलब 1, 1.2, 1.3, यानी 1 से ज़्यादा आना चाहिए। 1 नहीं, 1 से ज़्यादा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है। और जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में थोड़ा, इसको बोलेंगे हाईली इन इलास्टिक। ऐसे में आंसर क्या आएगा? लेस देन वन आएगा। लेस देन वन मतलब सी, आंसर शुड बी लेस देन वन। लेस देन वन 0.9, 0.6 इस तरह से। अब एक आंसर मेरे को बताइए, हाईली इलास्टिक गुड कौन सा हो सकता है और हाईली इलास्टिक गुड कौन सा है? सोच के देखो, कौन सा ऐसा गुड्स हो सकता है जिसमें प्राइस में थोड़ा परसेंटेज चेंज कर दो तो डिमांड बहुत ज़्यादा होता है? ये मोस्टली होता है लग्जरियस गुड में। मतलब मॉल में अगर जाओ और पता चलता है कोई लग्जरियस गुड, उसमें 10% छूट हो रहा है, देयर इज डिस्काउंट ऑफ 10%, तो लोग उसमें फालतू पैसा लगा के और भी ज़्यादा पैसा लगा के उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं। लग्जरियस गुड्स ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है जिसमें प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज करो तो उसका डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। आप ये चीज़ देखे होंगे, एक 31 दिसंबर में या किसी ओकेशनल डे में जब प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं तो लोगों का मॉल में भीड़ हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है। लग्जरियस गुड, वो लोग कौन सा गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ पर? लग्जरियस गुड। क्लियर? अब बोलोगे सर हाईली इलास्टिक गुड कौन सा होता है? हाईली इलास्टिक गुड कौन सा होता है? हाईली इलास्टिक मतलब नेसेसिटी गुड, जरूरत की चीज़ें, क्योंकि उसका प्राइस चाहे जितना भी गिरा दो डिमांड उसका थोड़ा सा ही इंक्राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल नमक, अगर प्राइस हम बहुत कम कर दें, मान लो नमक का कीमत 100 रुपये से 90% फॉल इन प्राइस ऑफ सॉल्ट, मतलब 100 रुपये सीधा 10 रुपये, क्या नमक हम ज़्यादा खरीदेंगे? क्या हम सब्जी में नमक ज़्यादा देंगे? नहीं, डिमांड इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। थोड़ा सा मतलब हम दो सब्जी बना लेंगे, लेकिन हम नमक ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। यानी नेसेसिटी गुड में प्राइस जितना भी फॉल कर लो, सॉरी, नेसेसिटी गुड में प्राइस को जितना भी फॉल कर लो डिमांड में थोड़ा सा ही इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली इनइलास्टिक। और नॉन यूनिटरी इलास्टिक किसे कहते हैं? जिसमें प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज हो। इक्वल चेंज मतलब अगर 10% प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड कितना इंक्रीज होगा? 10%। ये नॉर्मल गुड में होता है। किस में होता है? नॉर्मल गुड में। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट यूनिटरी इलास्टिक, जहां पर ईडी का आंसर इजिकल टू क्या आएगा? प्राइस कितना? 1 आएगा। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? सी, सपोज दिस इज अ डिमांड कर्व।
ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ये डिमांड कर्व है। यानी इसमें 10%, सपोज द फॉल इन प्राइस इज 10%, प्राइस में कितना फॉल हुआ है 10%, तो डिमांड में कितना राइज हुआ है 10%। ना वाई दिस यूनिटरी इलास्टिक को ही हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहा गया है? इसका आंसर बिकॉज इस पॉइंट के नीचे जो ये एरिया है, अगर इस पॉइंट के नीचे ये रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है और इस पॉइंट के नीचे भी ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं पहला वाला पॉइंट का अंदर का ये रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका एरिया निकालूं और इस रेक्टेंगल को देखो, सपोज इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों का एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। यानी जो यूनिटरी इलास्टिक होता है इसके हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लो, ये पॉइंट ले लो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लो, हर पॉइंट से अगर रेक्टेंगल बनाओगे और उसका एरिया निकालोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। और हर पॉइंट पर अगर एरिया सेम आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप अंडरस्टूड। ये बाकी डिमांड कर्व में नहीं होता है, मीन्स ये बाकी में नहीं होता है, मतलब परफेक्टली ना इसमें होता है ना इसमें होता है रेक्टेंगुलर हाइपर। ये दोनों तो हाइपोथेटिकल है, ये हमेशा किस में होता है? जहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक हो। क्लियर? सो वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर हियर। The only thing you have to do is you have to practically think and then read. प्रैक्टिकली सोचोगे और उसके बाद पढ़ोगे, तुम्हें हर चीज समझ में आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, in the last class we have studied definition of elasticity of demand, types of elasticity of demand, definition of price elasticity of demand, and what are the different types of price elasticity of demand. Yes or no? If I say definition of elasticity of demand means percentage change in quantity demanded due to percentage change in its determinants. And what is, how many types of elasticity demand are there? There are three types of elasticity of demand. What are those? Price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. For your syllabus there is only price elasticity. What is price elasticity? Percentage change in quantity demanded due to percentage change in price of the own commodity. Only price you will take price elasticity में। अगर income elasticity हो तो income लेते, तो income तो syllabus में है नहीं। Price of own commodity, formula is percentage change. You can see the formula, we have already did this. Percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. You can see the formula over here. Clear? Now today, and different, how many types of elasticity of demand are there? There are 5 types of price elasticity of demand. All these things we have already discussed. Now today we will start a new topic from the same chapter, that is what are the different मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, याद करिए, इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम लोग उस चीज को सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाता है। सी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ measuring price elasticity of demand? Answer, there are 3 different methods. How many methods are there? There are 3. What are they? There are 3 different methods to measure price elasticity, denoted by ED: percentage method, geometric method, and arc method. Percentage method is also known as proportionate method. Just remember, proportionate. Geometric method is also known as point method, point, and arc method is also there. The best method is arc method, but for you the syllabus, in your syllabus only percentage method will become, so we don't have to go through geometric and arc method. This you will
study in the higher class, that is in BCom. Okay, so which method we will continue here? Percentage method. Only percentage method is there to calculate price elasticity of demand. Now see the formula of percentage method. So which formula we are going to apply to calculate price elasticity? And the formula is, for percentage method, I have already given this formula earlier also. ED is equal to percentage change in quantity demanded. This delta is noted, delta means change, percentage change in quantity demanded due to percentage change in price of own commodity. Remember, this is the main formula. If you can remember this formula, then you can do any calculation. Percentage change in QD. QD means quantity demanded, and this triangle shape is called delta. Delta means change upon percentage change in price. Now this is the main formula. With this formula, two more formula is derived. डिराइव्ड मतलब निकल के आना. इस मेन फॉर्मूला से ही दो फॉर्मूला और निकल के आया, और ये दोनों, ये तीनों ही सेम है, बट इससे ये डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या है वो फॉर्मूला? डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी. सी, डेल्टा क्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 अपॉन Q1. यस और नो? डेल्टा क्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 अपॉन Q1. और एक और फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस Q1. यू कैन सी ओवर हियर. इसको इससे जोड़ो. डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? Q2 माइनस Q1. और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? P2 माइनस P1. और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, P1 अपॉन Q1. तो इससे क्या पता चला? ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड विद ईच अदर. नाउ ये डेल्टा क्यू, फॉर योर जीके आई विल टेल यू, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी को बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. याद रखना आप लोग, स्लोप ऑफ एक्सक्यूज मी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. कहीं पर भी दिखे ओनली डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी, ओनली दिस डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी इज नोन एज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. तो what we have understood कि this is the main formula, and from this formula we can able to derive two more formula, and these two are almost same. Delta Q means Q2 minus Q1. Delta P means P2 minus P1, और P1 upon Q1 are same in both the formula. Now इसको थोड़ा सा हम लोग हिंदी में समझते हैं. Listen, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं नीचे इस न्यूमेरिकल में जाता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आए. अब यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज इस न्यूमेरिकल से आप बहुत अच्छे तरह समझ पाएंगे. सपोज प्राइस था 4 रुपीज़. नीचे देखिए, प्राइस 4 रुपीज़ था. अब उस वक्त डिमांड कितना था? क्वांटिटी डिमांड कितना था? 25. प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया? 5 रुपये. अब डिमांड कितना हो गया? बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड 25 से कितना हो गया? 20. ठीक है, क्लियर? अब इसमें 4 को बोला जाएगा इनिशियल प्राइस. पहले जो कीमत था, इस 4 को क्या बोला जाएगा? इनिशियल प्राइस मींस P1. याद रखिएगा. और प्राइस इंक्रीज होकर कितना हुआ? 5. तो ये हो जाएगा न्यू प्राइस, यानी या फिर चेंज प्राइस. पहले 4 था तो P1. अब इस 5 को क्या बोलेंगे? न्यू प्राइस या चेंज प्राइस. उसी को वहां पर क्या बोलते हैं? P2. तो 4 को बोलेंगे P1 और 5 को क्या बोलेंगे? P2. इसी तरह से 25 को क्या बोलेंगे? Q1 और 20 को क्या बोलेंगे? Q2. तो इससे क्या पता चला कि P1 मतलब होता है, P1 का मतलब होता है इनिशियल प्राइस. अब P2 का मतलब होता है न्यू प्राइस. Q1 का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, मतलब स्टार्टिंग में कितना था. और जब प्राइस फॉल हुआ तब अब क्वांटिटी कितना हुआ, तो Q2, इसको बोलेंगे Q2. यानी न्यू क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? Q2. अंडरस्टूड? और यही हम यहां पर लिखे हैं. यानी अगर मैं बोलूं Q2 माइनस Q1, यही तो है इस फॉर्मूला में. तो Q2 मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, मतलब नया क्वांटिटी. अगर इस फॉर्मूला में देखें तो अगर किसको किसको माइनस होगा? इसमें होगा न्यू क्वांटिटी. कौन सा है बताओ? न्यू क्वांटिटी है 20 माइनस 25 करना है, यानी माइनस में आएगा. 20 माइनस 25 करना है. Q2, क्योंकि ये Q2 है और ये क्या है? Q1. अंडरस्टूड? ठीक है,
समझ में आ गया। अब बोलोगे सर डेल्टा क्यू कैसे लेते हो आप? डेल्टा क्यू का मतलब ही होता है चेंज। डेल्टा क्यू कहाँ है? तो इस ग्राफ में आ जाओ, इस शेड्यूल में आओ। डेल्टा क्यू मतलब सिर्फ 5 ले लो, सिर्फ 5। यहाँ पर देखो डेल्टा मतलब चेंज, कितने का चेंज है? 25 से 20 कितना का है? 5। तो डेल्टा 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 क्यू कितना लेंगे? 5। अच्छा, डेल्टा पी कितना लेंगे? कितने का चेंज है? 1। तो डेल्टा पी में कितना लिखेंगे? ओनली 1। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू में कितना लिखेंगे? डेल्टा क्यू में लिखेंगे सिर्फ 5 और डेल्टा पी में लिखेंगे सिर्फ 1। और इनिशियल प्राइस और इनिशियल P1 और Q1 हमें पता है। P1 कितना होगा बताओ इस न्यूमेरिकल में? P1 होगा 4 और Q1 कितना होगा? 20। डालोगे सेम आंसर आएगा जो इसमें आंसर आएगा। whatever answer you will get from here, you will also get the same answer from here. Then why we are using the both formula? Because you will get numerical in different way. जो सबसे इजी होगा वहां पर, सपोज कभी कभी डेल्टा क्यू डायरेक्ट दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कभी Q2 Q1 दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट। सी ओवर हियर। अब ये चीज हम एक बार ये बता दूं, सी तो प्राइस इंक्रीज हुआ 4 से 5 और क्वांटिटी डिक्रीज हुआ 25 से 20। तो जब प्राइस 4 से 5 इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? सोच कर देखो, एक का कीमत था 4 रुपीज और अब कीमत हो गया 5, तो कितना परसेंट कीमत बढ़ा है? तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का ये है फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए। कैसे? पहले तो इनका डिफरेंस लो, यानी 1 अपॉन, देखिए ये 1 दिख रहा है आप लोगों को, C1 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है? देखिए ओरिजिनल प्राइस मतलब स्टार्टिंग प्राइस कितना है? 4। तो 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मल्टीप्लाई हमेशा 100 होगा जब परसेंटेज है तो। क्लियर? अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां देखिए, प्राइस कितना बोला है? 4। अब प्राइस इंक्रीज 4 होके 5। अब क्वांटिटी कितना है? 25 से 20। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालें? बहुत इजी है। कैसे निकालें? पहले तो डिफरेंस लो, प्राइस का डिफरेंस। प्राइस का कितना डिफरेंस है दोनों का? बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल मतलब शुरुआत का प्राइस कितना है? 4 इंटू 100 कर दो, अपने आप परसेंटेज निकल जाए। कितना आया? 25%। क्लियर? अब इसी तरह से निकाल के बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है? तो बोलोगे सर डिफरेंस लेंगे, तो देखिए 25 से 20 कितने का डिफरेंस है? 25 से 20 कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस इज 5। तो यहां पर लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है? यहां देखिए आप लोग, ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल प्राइस है शुरुआती, स्टार्टिंग प्राइस कितना है? 25 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 20%। यस और नो? तो देखो हम लोग इस फॉर्मूला से इसको परसेंटेज में ले गए। अब बताओ प्राइस में कितना चेंज हुआ है? अगर हम देखेंगे प्राइस में कितना चेंज हुआ है? प्राइस में 25% चेंज हुआ है और डिमांड में कितना चेंज हुआ है? 20%। तो कौन सा में ज़्यादा चेंज हुआ है? प्राइस में। तो जब हम क्या बताए थे, जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है, टोल्ड यू, एक डायग्राम बताए थे, याद करो ऐसा, जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में थोड़ा सा, देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज है और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज है, तो ऐसे में आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 यानी 0 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा। ऐसे में हम क्या बोलते हैं? हाईली इन इलास्टिक। हाईली इन इलास्टिक। हाईली इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर स्टीपर है डिमांड का, यानी प्राइस में कितना चेंज है? मात्र 20%, लेकिन डिमांड में कितना चेंज है? 25%। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। इसी तरह से अब दूसरा यहां पर देखेंगे डायग्राम, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? दूसरा न्यूमेरिकल देखो, प्राइस में कितना चेंज है? 10 से 14 और डिमांड में कितना चेंज है? 1000 से 500, यानी प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है? तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला, चेंज कितने का है? 4, तो 4 ऊपर लिख लिए,
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है प्राइस 10, 10 नीचे लिख लिए इनटू 100 तो कितना आ गया 40। अच्छा इसमें कितने का चेंज है, परसेंटेज चेंज इन अगर क्यूडी निकालना हो तो इसमें कितने का चेंज है 500, 500 ऊपर लिखेंगे अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग कितना है 1000 है, सॉरी स्टार्टिंग कितना है 1000, 1000 को नीचे लिखेंगे इंटू 100 करें 50%। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिमांड में 50% चेंज है और प्राइस में कितना चेंज है 40%। तो यहाँ प्राइस में कम चेंज है और डिमांड में ज़्यादा चेंज है, यस और नो। पहले वाला में क्या था देखो, इस वाले में देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज था क्वांटिटी में कम, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं प्राइस में कम चेंज है क्वांटिटी में ज़्यादा। में तो सोच के बताओ ऐसे में ग्राफ क्या बनेगा, याद है आप लोगों को ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे में ग्राफ बनेगा फ्लैटर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है यानी फ्लैटर बनेगा, मीन्स प्राइस में थोड़ा सा चेंज है लेकिन डिमांड में ज़्यादा, या डिमांड कर कैसा बनेगा फ्लैटर, प्राइस में थोड़ा सा चेंज है लेकिन डिमांड में ज़्यादा। प्राइस में कितना चेंज है 40% और डिमांड में क्या है ज़्यादा 50%, ऐसे में क्या बनेगा फ्लैटर। और आगे वाला कैसा बना था स्टीपर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में आते हैं, अगेन सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है वो प्राइस। अब देखते हैं प्राइस कितना दिया हुआ है, अब नाउ द प्राइस इज 10, प्राइस घट के 8 हो गया, अब क्वांटिटी कितना 24 और ये बढ़ के कितना हो 25, 24 हो गया, 20 से 24। तो परसेंटेज चेंज है, पहले वाला परसेंटेज चेंज इन, नीचे वाला परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, प्राइस में कितना चेंज है 2, 2 अपॉन ओरिजिनल कितना है 10 इंटू 100 20%। और इसमें क्या करेंगे चेंज कितने का है इसमें क्वांटिटी में 4 अपॉन ओरिजिनल कितना है 20 इंटू 100 कर दिया। तो दोनों में देख रहे हैं कि 20% आ रहा है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोथ आर सेम। तो ऐसे में क्या बनता है याद करो, ऐसे में बनता है यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे में क्या बनता है यूनिटरी इलास्टिक, अगर याद हो यूनिटरी इलास्टिक लाइक दिस। यानी दोनों में सेम चेंज होगा, यूनिटरी इलास्टिक लाइक दिस, ई डी इज इक्वल टू 1। ऐसे में आंसर हमेशा क्या आएगा, ई डी इज इक्वल टू 1। इसी को रेक्टेंगल हाइपरबोला भी कहते हैं, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, अब यहाँ में इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है फिर भी यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है। क्या है देखो, प्राइस में कोई चेंज है, सी देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं फिर भी क्वांटिटी में चेंज है। तो इसमें हम अगर निकालेंगे प्राइस 10 था फिर 10 है तो परसेंटेज चेंज कितना है, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितने का चेंज है इसमें 10 का 10 ही है, तो 0% है, तो 0 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10 इंटू 100 के तो 0% आ गया, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 0 आएगा। और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 4 अपॉन ओरिजिनल कितना है 20 इंटू 100, तो इसको किए तो कितना आ गया 20%। और प्राइस में कितना चेंज है 0%, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है क्वांटिटी में चेंज है। याद करो यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनेगा जब प्राइस में कोई चेंज ना हो और क्वांटिटी में चेंज हो। देखिए नोटबुक पे देखो सब कोई सी, ये प्राइस ये क्वांटिटी, तो प्राइस यहाँ था हम इतना खरीद रहे थे तो यहाँ का यहीं प्राइस अभी उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं फिर भी हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे आके मिलेगा ये 2 पॉइंट। तो ऐसे में डिमांड करो क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल, यानी ई डी इजिकल टू क्या आएगा इन्फिनिटी, ई डी इजिकल टू इन्फिनिटी आएगा, क्लियर। अरे इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो इसके पैरेलल है ये, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल डिमांड का बोलते हैं परफेक्टली, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, क्लियर, परफेक्टली इलास्टिक। नाउ नेक्स्ट, सेम उसी तरह से इसमें भी है, सेम वही है, आप लोग देख सकते हो कि प्राइस में कितना चेंज है, इसमें प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस बार इसमें क्वांटिटी था 20%, इसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, तो क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज। और प्राइस में चेंज है 20%, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लेकिन प्राइस में है, तो ऐसे में क्या बनेगा वर्टिकल बनेगा लाइक दिस।
वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी वहीं का वहीं। इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा ई डी इज इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अंडरस्टूड? नाउ I hope you all have understood. Now the very interesting topic, last topic of this chapter, that is what are the factors excuse me, what are the factors affecting price elasticity of demand. अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल को मैं फिर से दोहराऊंगा। सी, ये रबड़ बैंड है, ठीक है, अगर ये जितना हम इसको खींच रहे हैं तो ये इलास्टिक है, और अगर नहीं खिंचा रहा है तो वो क्या है, इनलास्टिक। तो ये ज़्यादा खिंचाए तो इलास्टिक है, अगर ना खींच पाए तो इनलास्टिक है। तो इलास्टिक उसमें बोलेंगे, इलास्टिक उसको बोलेंगे जिसमें डिमांड में ज़्यादा चेंज हो, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो लेकिन डिमांड में क्या हो जाए, ज़्यादा चेंज। और इनइलास्टिक उसको बोलेंगे जिसमें थोड़ा सा चेंज हो, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज ना आए, वो इनइलास्टिक है, यानी हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अब सोच के बताना, नमक के बारे में सोचो और बताओ, नमक इलास्टिक है या इनइलास्टिक? क्या नमक में ज़्यादा चेंज आ सकता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, नमक में ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, चाहे प्राइस जितना भी बढ़ा लो या घटा लो, प्राइस का ज़्यादा इफेक्ट नमक पे, नमक के डिमांड पे नहीं पड़ सकता। वाई? बिकॉज प्राइस, नमक इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो हमें ये पता लगाना है कि विच गुड्स आर इलास्टिक एंड विच गुड्स आर इनइलास्टिक। इट डिपेंड्स ऑन मेनी ऑफ द फैक्टर्स, सो वन बाय वन विल डिस्कस द फैक्टर। क्लियर? सी, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द कमोडिटी, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। इफ इट इज नेसेसिटी गुड, मतलब जरूरत की चीज़ें हो, जैसे नमक, हल्दी, जरूरत की चीज़ें हैं, वो इनइलास्टिक रहेगा, चाहे उसका प्राइस जितना भी घटा लो, हम लोग ज़्यादा नहीं खरीदते, ठीक है। अगर कंफर्ट वाली चीज़ है तो इलास्टिक होगा, अगर लग्जरियस है तो भी इलास्टिक हो। कंफर्ट वाले मतलब मोबाइल, टीवी, ये सब रहा, पंखा वगैरह। तो कंफर्ट और लग्जरियस, ये दोनों केस में तो इलास्टिक होगा, और नेसेसिटी में क्या होगा, इनइलास्टिक। ये आएगा नेचर ऑफ द, यानी कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन इलास्टिक, कंफर्ट एंड लग्जरी देन इट्स इलास्टिक। इलास्टिक मतलब इसका प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दो तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन इसमें जितना भी चेंज कर लो इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ता, क्योंकि ये इनइलास्टिक है, इसको ज़्यादा खरीद के कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग नहीं खरीदते। ये पहला फैक्टर था। कम टू द सेकंड फैक्टर, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसका दूसरा ऑप्शन है, क्या उसका सब्स्टिट्यूट है? अब फिर से नमक का लेते हैं, नमक का क्या कोई सब्स्टिट्यूट है? इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्ट? हल्दी का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? आटा का कोई सब्स्टिट्यूट है? चलो सब्स्टिट्यूट है लेकिन बहुत कम, मैदा जैसे यूज़ कर सकते हैं, चावल यूज़ कर सकते हैं। तो जिनका सब्स्टिट्यूट बहुत कम हो या फिर ना हो, ऐसी चीज़ें इनइलास्टिक होता है। और जिसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो वो क्या होगा, इलास्टिक। अब जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वो इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि उसका कीमत जितना भी बढ़ा दो हम उसी को खरीदेंगे, उसको कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें वही खरीदना है। आज जितना भी घटा दो उसी को खरीदना है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट कहीं है ही नहीं। मान लो नमक का कीमत 50 से 100 कर दिए, तो क्या नमक हम खरीदना कम कर देंगे? कम तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसीलिए वो क्या, इनइलास्टिक है। लेकिन सोचो जिसका इलास्टिक हो, जिसका सब्स्टिट्यूट हो, जैसे कि चाय, चाय की कीमत बहुत बढ़ जाए तो लोग चाय भूल जाएंगे और सीधा किस में आ जाएंगे, कॉफ़ी में, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। तो चाय के डिमांड में बहुत गिरावट आएगा, इसका मतलब वो क्या है, इलास्टिक है। लेकिन नमक के डिमांड में कोई गिरावट नहीं आएगा क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ थर्ड, यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस। जिसका सिंगल यूज हो उस वो इनइलास्टिक होगा, और जिसका सेवरल यूज हो वो इलास्टिक होगा। नाउ सिंगल यूज मीन्स जिसका पर्पस सिर्फ एक है। अब नमक को लेते हैं, नमक का पर्पस सिर्फ एक ही है, खाना बनाने में, हम सब्जी बनाने में वी कैन यूज सॉल्ट, सो इट हैज़ सिंगल यूज। साबुन सिंगल यूज है, नहाने का काम आता है। तो जिसका यूज सिंगल हो वो इनइलास्टिक हो, उसका कीमत कितना भी बढ़ा दो फिर भी हम खरीदेंगे साबुन को, फिर भी हम नमक खरीदेंगे। बट जिसका सेवरल यूज हो, जिसके यूज कई हो, जैसे कि दूध, आइसक्रीम बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उसके कई यूज होते हैं।
मान लो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, तो जब इसकी कीमत बढ़ता है तो हम बहुत सारे यूज़ कम कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे में उसका डिमांड मार्केट में बहुत घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नंबर ऑफ यूजेस हम क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ऐसे में इसको बोलेंगे इलास्टिक। क्या बोलेंगे? इलास्टिक। बिकॉज इसका यूजेस हम, जो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसको हम कम कर देते हैं और सिर्फ मेन यूज़ में यूज़ करते हैं। तो ये नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज़ नंबर ऑफ यूजेस। अब बिजली के बारे में सोचो और इलेक्ट्रिसिटी टेल में, वो सिंगल यूज़ है या सेवरल यूज़ है, यानी वो इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। तो इसका आंसर होगा वो इलास्टिक है। बिकॉज जैसे ही बिजली का रेट बिल ज़्यादा होता है, यूनिट ज़्यादा आता है, देन वी स्टॉप यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक की चीज़ें हम लोग बंद करके रखते हैं। इससे मार्केट में ऑटोमेटिक बिजली का डिमांड बहुत घट जाता है। इसीलिए बिजली को क्या बोला गया? इलास्टिक। क्योंकि इसके बहुत सारे यूज़ में हम बहुत सारे यूज़ कम कर देते हैं, सिर्फ मेन यूज़ करते हैं। ठीक है। और सोच के देखो, बिजली अगर सस्ता कर दिया तो हम उसका यूज़ बढ़ा देंगे, फैन चला के रखेंगे, इंडक्शन कुकर यूज़ करेंगे, ये सब सारे चीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? थर्ड फैक्टर। नाउ फोर्थ इज हैबिट एंड फैशन। अगर हैबिचुअल है, मतलब उसका आपको आदत है, तो वो इनलास्टिक, वो आप खरीदोगे ही, चाहे उसका कीमत जितना बढ़ा दो या घटा दो, आप खरीदोगे ही। बट अगर आप नॉन हैबिचुअल, यानी उसका हैबिट नहीं है, तो जैसे ही उसका कीमत घटेगा आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, और इसीलिए उस वक्त वो क्या हो जाएगा? इनलास्टिक, यानी उसके डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो आपके हैबिट में नहीं है, तो आप बोलोगे दूसरा कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन जो आपका हैबिचुअल है, जो अगर मान लो आप सुबह रेगुलर चाय पीते हो, तो चाय का कीमत जितना भी हो जाए आप उसी को खरीदोगे, कॉफ़ी नहीं खरीद, अगर आप हैबिचुअल हो चाय के साथ। तो ऐसे टाइम पर अगर हैबिचुअल है तो चाय क्या बन जाएगा? इनइलास्टिक। लेकिन आप हैबिचुअल नहीं हो चाय के, आप उसके लिए दूध वगैरह ले लो, तो वो नॉन हैबिचुअल में आ जाएगा, उस वक्त इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि डिमांड किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो इलास्टिक, और कम इफेक्ट पड़ेगा तो इनइलास्टिक। अब आ जाओ रेंज ऑफ प्राइस। रेंज ऑफ प्राइस क्या होता है? रेंज ऑफ प्राइस मीन्स अगर किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम हो तो वो इनइलास्टिक होगा, और किसी का प्राइस मीडियम हो तो वो इलास्टिक होगा। अब इसका एग्जांपल समझिए। सपोज एक माचिस, मैच स्टिक आप खरीदने, मैच बॉक्स खरीदने गए, 1 रुपये का आता है। अगर वो 2 रुपये का भी आ जाए तो आप तुरंत खरीद लोगे, क्योंकि उसका कीमत आपके इनकम, जो आप इनकम खर्च करो उसका बहुत स्मॉल हिस्सा जा रहा है। हालांकि आप देखो वो 1 रुपये का था, वो कितने का हो गया? 2 रुपये का हो, यानी 100% प्राइस बढ़ गया है, पूरा का पूरा कीमत डबल हो गया, फिर भी आप खरीद लोगे, बिकॉज आपके इनकम का छोटा सा हिस्सा ही जा रहा है। तो वो आपके लिए क्या होगा? इनलास्टिक होगा, उसके डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम पैसा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला भी इनलास्टिक होता है, जैसे कि आप ज़मीन खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो, अगर उसका कीमत बहुत ज़्यादा डबल हो जाए तो आपको पता है कि आप एक बार में ही उतना पैसा लगाओगे। ठीक है? एक बार ही उसका उतना पैसा लगाओगे, और उसके बाद तो बार बार घर खरीदोगे नहीं। तो ऐसे केस में जहाँ पर इनकम बहुत कम लगे, जहाँ पर इनकम बहुत कम लगे या बहुत ज़्यादा लगे, ऐसे में क्या होता है? इनइलास्टिक। लेकिन जहाँ पर मीडियम लगे वो क्या होगा? इलास्टिक। क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर इनकम सबसे ज़्यादा लग रहा था, फिर भी हम उस चीज़ को क्यों खरीद रहे हैं? चाहे उसका कीमत जितना भी बढ़ गया, क्यों खरीदे? क्यों? क्योंकि एक बार खरीदना पड़ेगा, वो इनकम का घर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लेकिन मीडियम वाले को हम चेंज कर सकते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो हमें लगेगा कि ये बाद में खरीद लेंगे, इनकम का जो हिस्सा लग रहा है वो सोचेंगे हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको बार बार खरीदना है, मीडियम चीज़ों को, मीडियम प्राइस वाले को बार बार खरीदना है, इसीलिए ये इलास्टिक हो जाएगा, उस वक्त हम नहीं खरीदेंगे। तो इनकम का कम हिस्सा या ज़्यादा हिस्सा हमेशा इनइलास्टिक होता है, और मीडियम प्राइस वाला जो होता है वो इलास्टिक होता है। उसको हम रोक देते हैं और वेट करते हैं कब उसका प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट इज टाइम पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब शॉर्ट टाइम हो तो वो इनइलास्टिक होगा, और लॉन्ग टाइम हो, लॉन्ग पीरियड इलास्टिक। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, राइट नाउ कोविड-19 में, पेंडेमिक में लोगों के पास आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा दिया जाए और उसका कीमत दुगना कर दिया जाए, तो सबको पता है ये शॉर्ट पीरियड है, फिर मिलने वाला है नहीं ट्रांसपोर्ट। अभी मिल रहा है तो वैसे यूज़ करो, तो लोग 1000, 2000, 5000 रुपये दे के चले जाएंगे उस पर, यानी इनइलास्टिक है। मतलब इसका डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डिमांड घटेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर सरकार बोल दे कि ट्रांसपोर्ट चलते रहेगा साल तक, साल भर कोई ट्रांसपोर्ट में कमी नहीं होगा, तो अभी अगर 1000 रुपये हो तो लोग जाना छोड़ देंगे, बोलेंगे वो तो हमेशा चलेगा। उस वक्त वो क्या करेंगे? स्टे कर जाएंगे, तो उसके डिमांड में जाने में पैसेंजर
बस में कम चढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट में हमें पैसेंजर क्या दिखेगा, कम, क्योंकि पैसेंजर को पता है कि लॉन्ग टर्म तक हमें बस मिलते रहेगा। तो ऐसे में डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इलास्टिक है। क्लियर? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ये समझो, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ाना हो, कोई चीज़ खरीदना हो, मान लो अगर बोल दिया जाए कि कल से पेट्रोल का कीमत बढ़ने वाला है, तो शॉर्ट पीरियड है, कल से बढ़ेगा, आपके पास आज टाइम है, तो जितना भी कीमत अभी जो है, अगर वो ज़्यादा भी है तो लोग खरीद लेगा, डिमांड का भीड़ लग गया। लेकिन लॉन्ग पीरियड में बोले 1 साल बाद बढ़ाएगा, तो आदमी कल परसों तरसों 1 महीना 2 महीना बाद खरीदेगा, उस वक्त वो इलास्टिक है। क्लियर? क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम उसका क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाते, इसीलिए हमें पता है शॉर्ट पीरियड में गाड़ी नहीं मिलेगा इस कोविड-19 पैंडमिक के वक्त, इसीलिए लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, उस वक्त डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग पीरियड में हमें वो चीज़ अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए उस वक्त वो क्या बन जाता है, इलास्टिक। इसको फिर से पढ़ोगे, आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स लिटिल बिट टिपिकल फॉर यू, बट अगर आप एग्जाम्पल दिमाग में लो और करो, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।